morning, dear students. My subject is HVDC, high voltage direct current power transmission. And the today topic is the analysis of grid circuit with overlap. So let us start with my topic, analysis of grid circuit with overlap. Analysis of grid circuit with overlap. Here the figure is shown of the grid circuit with overlap. This is the figure of grid circuit with overlap. Here the 3-phase AC supply is given to the 3-winding of converter transformer, which is connected in star, and the neutral point is grounded. And this is the valve side winding may be connected star and delta. तो valve side winding मैंने स्टार में कनेक्ट किया है, लेकिन इसका जो न्यूट्रल है वो अनग्राउंडेड रहता है. तो स्टार में कनेक्ट है valve side winding, उसका न्यूट्रल क्या है, अनग्राउंडेड है. 3-phase AC supply is given to the 3-winding of converter transformer connected in star with neutral grounded. And the valve side winding may be connected in star or delta, but in this case we connect in this figure the valve side winding connected in star and the neutral point is ungrounded. Here the LC is the LC due to the leakage inductance of converter. This is the LC which is called source inductance. या एक कन्वर्टर का लीकेज इंडक्टेंस होता है. एलसी किसकी वजह से है, कन्वर्टर के लीकेज इंडक्टेंस के दौरान क्या है, एलसी है, जिसको हम सोर्स इंडक्टेंस बोलते हैं. जब हमने एनालिसिस ऑफ ग्रिड सर्किट विदाउट ओवरलैप पढ़ा था, उस टाइम पे हमने जो सोर्स इंडक्टेंस को क्या किया था, नेग्लेक्ट किया था. तो वहां पे सोर्स इंडक्टेंस को हमने कंसीडर नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे हम सोर्स इंडक्टेंस एलसी को कंसीडर करते हैं. ठीक है, एलसी इज द सोर्स इंडक्टेंस. This is the sequence of Aristar. This is in bridge form. This circuit is like a bridge form. This is called the grid circuit. LD is the DC side inductance. ID is the DC side current, and BD is the DC voltage, DC output voltage. And the sequence of thyristors, the valve is that 1, 2, 3, 4, 5, 6 is that sequence. LD is the DC side inductance, ID is the DC current, VD is the DC output voltage. Here the LC indicates the leakage inductance of transformer. यहाँ पे LC है, वो कन्वर्टर ट्रांसफार्मर के लीकेज इंडक्टेंस को शो करता है. VD and ID is the DC voltage and current flowing in the line. VD and ID is the DC voltage. VD and ID are the DC voltage and current in the line. DC current in the flowing in the line. VD and ID is the DC voltage and current, DC current flowing in the line. LD is the DC side reactance. LD जो यहाँ पे डिनोट किया है वो DC side का reactance है. Due to the leakage inductance of converter transformer, इस converter transformer के leakage inductance के दौरान and impedance in supply network और supply network में impedance के प्रेजेंट होने के दौरान the current in the valve cannot change suddenly. जो valve में जो current है वो suddenly change नहीं होता है, नहीं हो सकता. And thus commutation from one valve to next cannot be instantaneous. इसलिए एक valve से दूसरे valve में commutation है वो instantaneous नहीं हो सकता. Due to the leakage inductance of converter transformer and impedance in supply network, the current in valve cannot change suddenly. यानी कि कन्वर्टर ट्रांसफार्मर के लीकेज इंडक्टेंस और सप्लाई नेटवर्क के इंपेडेंस के दौरान जो करंट है वाल्व में वो सडनली चेंज नहीं हो सकता. एंड थस कम्यूटेशन फ्रॉम वन वाल्व टू नेक्स्ट कैन नॉट बी इंस्टेंटेनियस. ये कम्यूटेशन एक वाल्व से दूसरे वाल्व में इंस्टेंटेनियस नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल ये देखते हैं, व्हेन वाल्व 3 इज फायर्ड, जब इस वाल्व 3 को हम फायर कर रहे हैं, व्हेन वाल्व 3 इज फायर्ड द करंट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वाल्व 1 टू वाल्व 3. जो करंट का ट्रांसफॉर्म हुआ वाल्व 1 से वाल्व 3 में टेक्स ए फाइनाइट पीरियड, वो एक सीमित समय लेता है, ड्यूरिंग व्हिच बोथ वाल्व्स आर कंडक्टिंग. यानी जब दोनों वाल्व्स कंडक्ट कर रहे हैं उस टाइम के दौरान वो एक फाइनाइट पीरियड लेता है करंट को ट्रांसफॉर्म होने में. यानी कि वाल्व 1 से वाल्व 3 में जो करंट ट्रांसफॉर्म होगा वो एक फाइनाइट समय लेता है, फाइनाइट पीरियड में सीमित समय लेता है, जब दोनों वाल्व कंडक्ट कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड
ओवरलैप, इसे हम ओवरलैप कहते हैं। एंड इट्स ड्यूरेशन इज मेजर्ड बाय ओवरलैप या कम्यूटेशन एंगल व्यू, और इसके ड्यूरेशन को यानी कि जो ओवरलैप का ड्यूरेशन है उसको हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग ओवरलैप एंगल या कम्यूटेशन एंगल, जिसको किसके द्वारा दर्शाते हैं, व्यू के द्वारा डिनोट करते हैं। एग्जांपल के लिए जब बॉल 3 को हम फायर करेंगे तो करंट ट्रांसफॉर्म होगा बॉल 1 से बॉल 3 में, वो एक फाइनाइट समय लेता है, एक सीमित समय लेता है, ड्यूरिंग विच बोथ बॉल्स आर कंडक्टिंग, जब दोनों बॉल्स कंडक्ट कर रहे हैं तो उसके दौरान करंट जो बॉल 1 से बॉल 3 में ट्रांसफॉर्म होने में एक फाइनाइट पीरियड लेता है, सीमित समय लेता है। दिस इज कॉल्ड ओवरलैप, इसी को हम ओवरलैप कहते हैं। एंड इट्स ड्यूरेशन इज मेजर्ड बाय द ओवरलैप और कम्यूटेशन एंगल व्यू, और इस ड्यूरेशन को यानी ओवरलैप के ड्यूरेशन को हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग ओवरलैप एंगल व्यू या कम्यूटेशन एंगल व्यू के द्वारा इसे दर्शाते हैं। ठीक है, ओवरलैप एंगल बोल सकते हैं इसको या कम्यूटेशन एंगल बोल सकते हैं, और इसको किसके द्वारा दर्शाते हैं, व्यू के द्वारा दर्शाते हैं। नाउ नेक्स्ट, here due to the here LC जो है वो है due to the leakage inductance of the converter transformer, due to the inductance property it opposes the instantaneous change of current, यह जो करंट में instantaneous change होते हैं उनका अपोज करता है। ठीक है, इसकी वजह से जो वॉल्यूम 3 को जब हम फायर करेंगे तो करंट ट्रांसफर होगा वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 3 में, कोई फाइनाइट पीरियड लेता है जब दोनों बॉल कंडक्ट कर रहे हैं, इसको हम ओवरलैप कहते हैं। और इस ओवरलैप को, इस जो ओवरलैप का ड्यूरेशन है उसको ओवरलैप एंगल या कम्यूटेशन एंगल व्यू के द्वारा दर्शाते हैं, इसके द्वारा मेजर करते हैं, ओवरलैप एंगल के द्वारा या कम्यूटेशन एंगल के द्वारा इसे मेजर करते हैं, और इसके द्वारा दर्शाते हैं, व्यू के द्वारा दर्शाते हैं। नेक्स्ट इज दैट next is that commutation delay. Next is that commutation delay. Commutation delay. Commutation delay. The process of transfer current. The process of transfer current. The process of transfer current. Current from one part to another part. From one part to another part, one part to another part, one part to another part, will both paths carrying current, will both paths carrying current, will both paths carrying current, will both paths carrying currents simultaneously is known as overlap. Simultaneously is known as overlap. Is known as overlap. Is known as overlap. Whenever current is transferring from one bulb to another bulb, whenever current is transferring, current is whenever current is transferring from one bulb to another bulb, one bulb to another bulb, then at that time there will be overlap. So the time required for commutation or overlapping, time required for commutation or overlapping,
So the time required for computation of overlapping, which is expressed in electrical degree, which is expressed in electrical degrees, expressed in electrical degrees, which is expressed in electrical degrees, is done with commutation angle denoted by mu. Is done with commutation angle denoted by mu. Denoted by mu. Denoted by mu. Here the process of transfer current from one part to another part with both paths carrying current. यानी कि करंट का जो ट्रांसफर हो रहा है एक पाथ से दूसरे पाथ में जो करंट का ट्रांसफर हो रहा है विल बोथ पाथ्स कैरिंग करंट, जिसमें दोनों पाथ है वो करंट को कैरी करेंगे. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर करंट फ्रॉम वन पाथ टू अनदर पाथ, एक पाथ से दूसरे पाथ में जो करंट के ट्रांसफर होने की जो प्रक्रिया है विद बोथ पाथ्स कैरिंग करंट, यानी कि दोनों पाथ करंट समान दोनों पाथ है वो करंट कैरी करेंगे साइमल्टेनियसली, इज नोन एज ओवरलैप. इसको हम क्या कहते हैं? ओवरलैप कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर करंट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पाथ विल बोथ पाथ कैरिंग करंट साइमल्टेनियसली, दोनों पाथ हैं जो साइमल्टेनियसली करंट को कैरी करेंगे, इज नोन एज ओवरलैप. इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरलैप कहते हैं. In overlap period, both were 1, 3, 3, 5 and 5, 1. जब ये अपने पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप में ये कंडक्ट करेंगे, जब ये ओवरलैप पीरियड में बोथ वर्ग जैसे कि 1, 3 हो गया, 3, 5 हो गया और 5, 1, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप से कंडक्ट करेंगे, whenever current is transferring from one वर्ग to another वर्ग, जब करंट का ट्रांसफर होगा एक वर्ग से दूसरे वर्ग में, जब करंट का ट्रांसफर हो रहा है, then at that time, तब उस समय देयर विल बी ओवरलैप. तो उस टाइम पे क्या होगा? ओवरलैप होगा. यानी कि जब करंट का ट्रांसफर जो होगा एक वर्ग से दूसरे वर्ग में करंट ट्रांसफर हो रहा है, तो उस टाइम पर वहां पे क्या होगा? ओवरलैप होगा. ठीक है. सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन और ओवरलैपिंग विच इज एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रिकल डिग्रीज. इसलिए जो टाइम की रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन के लिए, ओवरलैपिंग के लिए, इसलिए जो टाइम की आवश्यकता है कम्युनिकेशन के लिए और ओवरलैपिंग के लिए, विच इज एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रिकल डिग्री, जिसे इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में दर्शाते हैं, इज डन विद कम्युनिकेशन डिनोटेड बाय म्यू. इज डन विद कम्युनिकेशन एंगल डिनोटेड बाय म्यू, जिसको हम कम्युनिकेशन एंगल म्यू के द्वारा डिनोट करते हैं. जो भी टाइम की विच इज एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रिकल डिग्रीज इज डन विद कम्युनिकेशन एंगल डिनोटेड बाय म्यू. जो भी टाइम की रिक्वायरमेंट है ओवरलैपिंग के लिए या कम्युनिकेशन के लिए, उसको इलेक्ट्रिकल डिग्री में हम एक्सप्रेस करते हैं, दर्शाते हैं, इज डन विद कम्युनिकेशन एंगल डिनोटेड बाय म्यू. ये होता है कम्युनिकेशन एंगल जिसको म्यू के द्वारा हम डिनोट करते हैं. Now the next point is that during normal operating conditions, the overlap angle is the range of overlap angle is the range of 0 to 60 degree, 0 to 60 degree, in which 2 or 3 balls are conducting, in which 2 or 3 balls are conducting, 2 or 3 balls are conducting, 3 balls are conducting, balls are conducting. ये है नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन. नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन के दौरान however if the overhead angle however if overlap angle
However, if overlap angle is the range of 60 to 120 degree, is the range of 60 to 120 degree, 60 to 120 degree, then 3 to 4 balls in conducting state. Then there will be 3 to 4 balls are in conducting state. Conducting state, which is known as abnormal operating mode. Which is known as abnormal operating mode. Abnormal operating mode. Which is known as abnormal operating mode. During computation period, here the computation जो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन और अबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन है वो इसके लिए दिखाई गई पॉइंटों में. ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस द ओवरलैप एंगल इज द रेंज ऑफ 0 to 60 डिग्री. यानी जब नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन के दौरान जो ओवरलैप एंगल की जो रेंज होगी वो 0 से 60 डिग्री तक होगी. इन विच जिसमें 2 और 3 बॉल्स ऑफ कंडक्टिंग, जिसमें 2 या 3 बॉल कंडक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, इसमें 2 या 3 बॉल कंडक्ट कर रहे होते हैं और रेंज क्या होगी नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन के दौरान ओवरलैप एंगल की रेंज क्या होगी 0 to 60 डिग्री, जिसमें 2 या 3 बॉल कंडक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, However, if the overlap angle is the range of 60 to 120 degree, यदि overlap angle की जो रेंज है वो 60 to 120 degree है, then the 3 or 4 balls are in conducting state. तो 3 या 4 बल 3 or 4 balls are in conducting state. 3 or 4 balls are in conducting state. तो 3 या 4 balls conducting state में होते हैं, which is known as abnormal operating mode, जिसे हम क्या बोलते हैं abnormal operating mode कहते हैं. यदि ओवरलैप एंगल की रेंज 60 टू 120 डिग्री की रेंज में है तो उस टाइम पे 3 या 4 बॉल्स कंडक्टिंग स्टेट में होते हैं, विच इज नोन एज अबनॉर्मल ऑपरेटिंग मोड, जिसे अबनॉर्मल ऑपरेटिंग मोड कहते हैं. ठीक है, यानी कि एक ही जो कंडक्शन स्टेट में तो 3 या 4 बॉल्स क्या कर रहे होंगे ऑपरेट कर रहे होंगे. तो यहाँ पे ओवरलैप एंगल की यदि रेंज 60 टू 120 डिग्री है तो उस टाइम पे 3 या 4 बॉल्स कंडक्टिंग स्टेट में होते हैं, जिसे हम अबनॉर्मल ऑपरेटिंग मोड कहते हैं. जिसे हम क्या बोलते हैं अबनॉर्मल ऑपरेटिंग मोड कहते हैं. और यदि रेंज है जो ओवरलैप एंगल की रेंज 0 से 60 डिग्री के बीच में तो वहां पे 2 या 3 बॉल्स कंडक्ट कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन. और यदि ओवरलैप एंगल की रेंज 60 टू 120 डिग्री है तो वहां पे 3 या 4 बॉल्स कंडक्टिंग स्टेट में होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं अबनॉर्मल ऑपरेटिंग मोड कहते हैं, अबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट point is that during computation period the current increases from 0 to ID. The current increases from 0 to ID. Current increases from 0 to ID maximum. ID means जो DC करता है वो maximum value को पहुंचता है. ID maximum in the incoming ball. In the incoming ball and reduces to 0 and reduces to 0 from ID in outgoing state. The computation process begins
computation process begins with delay angle computation process begins with delay angle and end with delay angle alpha and ends with extension angle. That is it starts when omega t बराबर alpha and ends when omega t बराबर alpha plus k mu which is called delta. That is जो भी आप delta, where delta is known as extinction angle. Where delta is known as extinction angle. Here the next point is that during communication period the current increases from 0 to ID. यानी communication period के दौरान जो current है वो 0 से लेके ID यानी maximum value तक increase होता है in the incoming bulb में and reduces to 0 from ID और ID से 0 तक reduce होता है in outgoing state में ये क्या होता है 0 से लेके ID तक reduce होता है. कम्युनिकेशन पीरियड के दौरान जो करंट है वो इनकमिंग बल्ब में 0 से लेके ID की मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज होता है और रिड्यूस होता है ID से 0 तक रिड्यूस होता है इन द आउटगोइंग स्टेट में ID से 0 तक रिड्यूस होता है. द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिंस विद डिले एंगल अल्फा. यहाँ पे जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो डिले एंगल अल्फा के साथ स्टार्ट होती है, शुरू होती है एंड विद एक्सटेंशन एंगल और एक्सटेंशन एंगल के साथ इसका एंड होता है. That is, it starts when omega t बराबर अल्फा. यानी ये जो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है वो ओमेगा t बराबर अल्फा मींस डिले एंगल में तो क्या होगी स्टार्ट होगी एंड एंड्स व्हेन ओमेगा t बराबर अल्फा प्लस के म्यू व्हिच इज इक्वल टू डेल्टा. और ये एंड कब होगी जब ओमेगा t बराबर एंड व्हेन ओमेगा t बराबर अल्फा प्लस के म्यू व्हिच इज इक्वल टू डेल्टा. Where del is known as extinction angle, mu is the commutation angle या overlap angle, alpha is the delay angle, mu is the overlap angle या commutation angle, delta is the extinction angle, alpha is the delay angle. So जो commutation की प्रक्रिया है वो delay angle alpha के साथ स्टार्ट होती है और extinction angle के साथ क्या होती है एंड होती है. extinction angle के साथ क्या होती है एंड होती है. तो इट स्टार्ट्स व्हेन ओमेगा टी बराबर अल्फा. कम्युनिकेशन की क्रिया होगी ओमेगा टी बराबर अल्फा से क्या होगी स्टार्ट होगी और एंड कहां पे होगी व्हेन जब ओमेगा टी बराबर क्या होगा अल्फा प्लस के म्यू व्हिच इज इक्वल टू डेल्टा. यानी एक्सटेंशन एंगल पे क्या होगी एंड होगी. ठीक है. तो वेयर अल्फा इज द डिले एंगल, म्यू इज द ओवरलैप एंगल और कम्युनिकेशन एंगल और डेल्टा इज द एक्सटेंशन एंगल वेयर डेल्टा इज नोन एज एक्सटेंशन एंगल. इसके बाद आता है मोड ऑफ ऑपरेशन. ड्यूरिंग ये हमारा है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन पीरियड द करंट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू ID. कम्युनिकेशन पीरियड के दौरान जो करंट है वो 0 से ID मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज होता है इन द इनकमिंग बल्ब एंड रिड्यूसेस टू 0 और 0 तक रिड्यूस होता है फ्रॉम ID से 0 तक रिड्यूस होता है आउटगोइंग स्टेट में. कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो डिले एंगल अल्फा के साथ स्टार्ट होती है और एक्सटेंशन एंगल के साथ क्या होती है एंड होती है. मींस ओमेगा टी बराबर अल्फा यानी इससे तो जो हमारी कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट होती है और ओमेगा टी बराबर अल्फा प्लस के व्हिच इज कॉल्ड डेल्टा. जो यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो क्या होता है एंड होता है. वेयर डेल्टा इज नोन एज एक्सटेंशन एंगल. जहाँ पे डेल्टा को क्या बोलते हैं एक्सटेंशन एंगल बोलते हैं. नेक्स्ट आता है मोड ऑफ ऑपरेशन. मोड ऑफ ऑपरेशन मोड ऑफ ऑपरेशन मोड फर्स्ट मोड वन में हमारा क्या होगा 2 and 3 वर्ब्स कंडीशन आर इन कंडीशन 2 and 3 वर्ब्स
2 and 3 walls conduction, यानी 2 और 3 walls यहाँ पे कंडक्टिंग स्टेट में होते हैं जब U की वैल्यू लेस देन होगी 60 डिग्री, ठीक है। अगला है मोड 2, इसमें 3 walls कंडक्टिंग स्टेट में होते हैं, 3 walls कंडक्शन में होते हैं, 3 walls कंडक्ट करते हैं कंडक्शन, 3 walls इन कंडक्शन जब U की वैल्यू होगी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। एक नेक्स्ट आपका मोड 3 है जिसमें 3 और 4 वाले कंडक्शन स्टेट होते हैं, 3 एंड 4 वॉल्स, 3 या 4 वॉल्स कंडक्शन इन कंडक्शन व्हेन U is greater than 60 डिग्री। तो मोड ऑफ ऑपरेशन ये है, फर्स्ट में 2 या 3 वॉल्व कंडक्ट करेंगे जब U की वैल्यू लेस देन 60 डिग्री होगी, यानी कम्यूटेशन एंगल या जो हमारा ओवरलैप एंगल है उसकी वैल्यू 60 डिग्री से कम होगी, तो उस टाइम पे 2 या 3 वॉल्व कंडक्शन स्टेट में होंगे। मोड 2 में 3 वॉल्व कंडक्शन स्टेट में होंगे जब U की वैल्यू इक्वल टू होगी 60 डिग्री, और जब मोड नंबर 3 में 3 या 4 वॉल्व कंडक्शन स्टेट में होंगे जब U की वैल्यू 60 डिग्री ग्रेटर देन 60 डिग्री होगी, ठीक है। तो मोड नंबर 3 में 3 या 4 वॉल्व कंडक्टिंग स्टेट होंगे या 3 या 4 वॉल्व कंडक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, जब U की वैल्यू 50 होगी ग्रेटर देन 60। तो दीज आर द मोड ऑफ ऑपरेशन, U is less than 60 degree, then the 2 and 3 walls are in conducting state. When mode number 2, when U is equal to 60 degree, then the 3 walls are in conducting state. Mode number 3, when U is greater than 60 degree, then the 3 and 4 walls are in conduction state, the conducting state. Thank you dear students, thank you dear students, thank you.